देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ନମ୍ବର 1 31 ରୁ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଆଗତ ହେବ ବଜେଟ୍। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। କାଲି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ବଜେଟ୍ ଆଗତ ହେବ। ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଅଧିବେଶନ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ଉଭୟ ଗୃହର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ଥର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ 31 ଜାନୁଆରୀରୁ 11 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେସନ୍ 14 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 8 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ନମ୍ବର 2 ଇସ୍ରୋର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଏସ୍ ସୋମନାଥ। ଇସ୍ରୋର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏସ୍ ସୋମନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କେ ଶିବନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଜାନୁଆରୀ 14ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଏସ୍ ସୋମନାଥ ଇସ୍ରୋର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଭିଏସ୍ଏସ୍ସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଇସ୍ରୋର ପ୍ରମୁଖ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏସ୍ ସୋମନାଥ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂଗଠନ ଇସ୍ରୋର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭିଏସ୍ଏସ୍ସି ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ ସୋମନାଥ ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ ସ୍ଥିତ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ପ୍ରପଲଜନ୍ ସିଷ୍ଟମ ସେଣ୍ଟରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରହିଥିଲେ। ନମ୍ବର 3 ସିଡିଏସ୍ଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାର ରିପୋର୍ଟ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଶଙ୍କାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର। ସିଡିଏସ୍ ବିପିନ ରାୱତଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାର 3 ସେନା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏଥିରେ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଖରାପ ପାଗକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପାଗ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହେଲିକପ୍ଟର ଆଗକୁ ମେଘ ଘୋଟି ଆସିବାରୁ ପାଇଲଟ ହଡ଼ବଡ଼ି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିଲେ ଓ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ପାହାଡ଼ରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ମନବିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ତଦନ୍ତ କମିଟି ନିଜ ରିପୋର୍ଟରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହା ସବିଶେଷ ଦର୍ଶାଇଛି। ଏହି ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ନିଜର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ MI-17 ହେଲିକପ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ରୁଷୀୟ କମ୍ପାନୀ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ରୁଷୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 4 ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ 8130 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପ୍ରଭାବିତ। ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ଧରି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳର କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ବର୍ଷ ତମାମ ପ୍ରତି 3 ମାସ ଅନ୍ତରରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବାରୁ ଚାଷୀକୂଳ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷକ 12 ମାସରେ ଏଠିକାର ଚାଷୀମାନେ 3 ରୁ 4 କିସମ ଫସଲ ଚାଷ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ଭରସା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚାଷୀ କେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ଏପରିକି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଫସଲ ହାନି ଘଟୁଛି। ଚଳିତ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ 3 ଦିନର ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଉତୁରିଥିବା ଫୁଲକୋବି ଓ ବନ୍ଧକୋବି ଚାଷ ବର୍ଷାମାଳରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ମହାନଦୀ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଆଗଧାଡ଼ିର ଚାଷୀମାନେ ବନ୍ଧକୋବି ଓ ଫୁଲକୋବି ବିଲରୁ କାଟି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ବେପାରୀଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଚାଷୀ ଶସ୍ତା ଦରରେ କିଛି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା 15ରୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଶୀତ। 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପାରଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଖସିବ, ଶୀତ ଫେରିବ। ଗତକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି ଆଜିଠାରୁ 15 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନ ଯଥା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଣୁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ବିଶେଷ କରି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଫସଲର କ୍ଷତି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଶୀତଦିନିଆ ଡାଲି ଜାତୀୟ ବିହନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଗ, ବିରି ଆଦି ତୈଳବୀଜ ବିହନ ବୁଣାବୁଣି ଆଗକୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ସାମୟିକ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ଷା ପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ତଳମୁହାଁ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବିହନ ଗଜାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 6 ବେଦାନ୍ତ ହାତକୁ ଯାଇପାରେ BPCL। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରୀକରଣ ପାଇପଲାଇନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ NMP ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରର ଘରୋଇକରଣ ସରିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ କିଛି କିଛି ନୂଆ ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସଦ୍ୟ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଭାରତୀୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ BPCLର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ BPCLର ଅଂଶଧନକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତ ଗ୍ରୁପ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀ ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ 65,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସରକାର BPCLର ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରି ନେଇ ବହୁ ଦିନରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। BPCLର ବିକ୍ରି ପରେ ଏହା ଦେଶର ବଡ଼ ଆସେଟ୍ ସେଲ୍ରେ ସାମିଲ ହେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ BPCL ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ରିଫାଇନେରୀ କମ୍ପାନୀ। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 53% ଅଂଶଧନ ରହିଛି। ନମ୍ବର 7 ଭିତରକନିକାରେ ବଢ଼ିଲେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ।
विश्व प्रसिद्ध भितरकनिका जातीय उद्यान रे विदेशगत पक्षी संख्या वृद्धि पाई। चलित मास 12 तारिख दिन वन विभाग पक्षर होइतिबा गणनारू यह जना पड़ी। गत वर्ष भितरकनिकार 1,36,092 पक्षी आसिथिबा बेले ए वर्ष 1,38,107 पक्षी आसिछंती। अर्थात गत वर्ष ठारू ए वर्ष भितरकनिका को 2015 पक्षी अधिक आसिथिबा जना पड़ी। गत वर्ष भितरकनिका को 121 प्रजातिर पक्षी आसिथिबा बेले ए वर्ष 144 प्रजातिर पक्षी आसिछंती। एथर भितरकनिकार विरल कमन सेल डग पक्षी को देखा मिली। यही पक्षी कम संख्यार देखा जाइथांती। गत वर्ष पक्षी गणना बेले यही प्रजातिर मात्र 3टी पक्षी देखा जाइथिले। नंबर 8 लागू है निर्वाचन आचरण विधि, हटिला ब्यानर और पोस्टर। राज्य निर्वाचन कमिशन पंचायत निर्वाचन तारीख घोषणा करिबा परे सारा राज्य में आदर्श आचरण विधि लागू कर जाइछि। तेणु जिला निर्वाचन अधिकारी निर्देश क्रमे सहरर विभिन्न स्थान में लागिथिबा दलीय ब्यानर, पताका और पोस्टर सबू हटई दि जाइछि। बौद्ध तहसिलदार अविनाश पांड्या और एनएससी निर्वाही अधिकारी इंजीनियर मनोरंजन पंडा नेतृत्व में सहरर विभिन्न स्थान में लागिथिबा राजनैतिक दलगुड़िकर पोस्टर और ब्यानर को हटई दि जाइछि। नंबर 9 ढिंकिया आंदोलनर नेतृत्व नेउथिबा देवेंद्र स्वाई गिरफ। प्रस्तावित जेएसडब्ल्यू प्रकल्प को विरोध करी ढिंकिया आंदोलनर नेतृत्व नेउथिबा पूर्वतन समिति सभ्य देवेंद्र स्वाई को गिरफ करिछि पुलिस। जगतसिंहपुर जिला अतिरिक्त एसपी उमेश पंडा ही सूचना देइछंती। काली ढिंकिया पान बरज उच्छेद कर जाउथिबा बेले एहाको विरोध करिथिले ग्रामवासी। सेमाने पुलिसर बाट गड़िबाको उद्यम करिथिले। फଳରେ पुलिस सहित सेमानकर ठेलापेला और धस्ताधस्ती होइथिला। पुलिस सेठारे लाठीचार्ज करिथिला। एथिरे किछि ग्रामवासी आहत होइथिबा कुहा जाउछि। आंदोलनकारी अस्थायी कैंप को मध्य पुलिस भांगी देइछि। सेहीपरि लोकंक आक्रमण रे किछि पुलिस कर्मचारी आहत होइथिबा जणा पड़िछि। नंबर 10 खसिला पाइकारी मूल्यस्फीति। देश में 2021 डिसेम्बर मासरे पाइकारी मूल्यस्फीति 13.5% को ह्रास पाइछि। ता पूर्वरु यह नवेम्बर में 14.23% रहिथिला। अक्टोबर में पाइकारी मुद्रास्फीति तुलनात्मक भाव में कम 13.83% रहिथिबा जणा जाइछि। केंद्र वाणिज्य शिल्प मंत्रालय पक्षर प्रकाशित तथ्य कहुଯାଇଛି जे पेट्रोलियम इंधन, मूल धातु, अशोधित पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, रासायनिक और रासायनिक पदार्थ, खाद्य सामग्री, बयन सामग्री, कागजरू प्रस्तुत सामग्री आदि मूल्य वृद्धि कारण 2021 डिसेम्बर में मुद्रास्फीति हार पूर्व वर्ष डिसेम्बर तुलन में अधिक रही। असमय वर्षा, कूपथर माड़ जो फसल हानि, नुआ वर्षर जीएसटी संशोधन आदि कारण पाइकारी मुद्रास्फीति प्रभावित होगा आशंका कर जाउछि। नंबर 11 केन्द्रर नुआ गाइडलाइन, लक्षणहीन कंटाक्ट मानक टेस्ट जरूरी नुहे। कोविड संक्रमण बढ़ुଥିବା बेले काली केंद्र सरकार होम आइसोलेशन पाई पुणी नुआ गाइडलाइन जारी करिसंती। एही गाइडलाइन रे सामान्य संशोधन करा जाइछि। पूर्वरु कोविड आक्रांतक संस्पर्शे आसुवा समस्तंकर टेस्टिंग बाध्यतामूलक थिला। हेले एबे लक्षणहीन कंटाक्ट मानकर टेस्टिंग जरूरी नुहे। लक्षण नथिले टेस्ट आद्य करंतु नाही बोली स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु कह जाइछि। सेहीपरि केउ माने होम आइसोलेशन रे रही परिबे से कथा मध्य मंत्रालय गाइडलाइन रे उल्लेख करिछि। गाइडलाइन केवल लक्षणहीन और सामान्य लक्षण थिबा आक्रांतक क्षेत्र में लागू हेबो। पूर्वरु कोविड आक्रांतक 10 रु 15 दिन होम आइसोलेशन रे रहिबार नियम थिला, किंतु एबे एहाको 7 दिन को ह्रास करि दिया जाइछि। 7 दिन परे बिना टेस्ट रे जनको कोविड मुक्त बोली कहजिवो। नंबर 12 संगीत निर्देशक सरोज पट्टनायक परलोक। एई जे बनलता पहाड़ तो बिना लागे ना भल किछि, एई झुम झुम गोलापी बेड़ा भड़ी अभुला गीतर संगीत निर्देशक सरोज पट्टनायक आउ नाहांती। गुरुवार राति 8टारे बारिपदा स्थित बासभवन में से शेष निश्वास त्याग करिसंती। मृत्यु बेड़क तांको 82 वर्ष होइथिला। सरोज पट्टनायक एक धारारे जड़े संगीत निर्देशक और गीतिकार थिले, किंतु वृत्ति रे से थिले जड़े सिविल इंजीनियर। 1940 मसीहा जून 2 तारिख रे से मयूरभंज जिले में जन्म होइथिले। पिला बेळु संगीत प्रति तांकर थिला गभीर आकर्षण। तांको बड़ भौणी कविता पट्टनायक ठारू से संगीत शिक्षा लाभ करथिले। 1958 रु 59 मसीह तांको गीत आकाशवाणी रे बाजुथिला। परवर्ती समय से आकाशवाणी और दूरदर्शनर जड़े स्वीकृति प्राप्त गीतिकार और संगीत निर्देशक भाव मान्यता पाइथिले। नंबर 13 कॉल कॉन्फ्रेंस करूछंती कि मिनिटकरे खाली होइजिबे अकाउंट। कथा हेला बेले कॉल कॉन्फ्रेंस करूछंती कि जदि हाँ तेबे सावधान हो जातु। आपणक अकाउंट रु मिनिटकरे गायब हो सबु टंका। केंद्रीय गृह मंत्रालय पक्षरु ट्विटर हैंडल साइबर दोस्त जरिए ओटीपी को नहीं सतर्क सूचना जारी कर जाइछि। मंत्रालय पक्षरु जना जाइछि जे साइबर ठकीर शिकार हेबा द्वारा हेल्पलाइन नंबर 155260 को तुरंत अभियोग करंतु। मोबाइल फोन रे कोनोसी अजଣା व्यक्ति को कॉल करिबा समय रे मर्ज करंतु नाही। एमिति करिबा द्वारा आपनकु सोशल मीडिया अकाउंट हैक होई पारे। यह जरिए साइबर अपराधी आपनक बैंक खाता पर्यंत पहुंची पारि थांती। साइबर ठकई लगातार बढ़ुवा देखा मिलूछि। तेणु सरकार एथिपाई लोकंकु सतर्क सूचना जारी करिसंती। नंबर 14
फिलिपाइन्स को भारत बिकिब ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र। एकदा प्रतिरक्षा सामग्री और युद्धास्त्र निमंते विदेशी राष्ट्रगुड़िक पर भारत निर्भर करुथिबा एवं अधिकांश उपकरण आमदानी करुथिबा बेले एबे यह विदेश को युद्धास्त्र और विभिन्न सामरिक उपकरण बिक्री करने आरंभ करिछि। रूस और भारत पक्षर मिलित भाव में निर्मित ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र सामर्थ्य को लक्ष्य करने पर विश्वर विभिन्न राष्ट्र भारत निकटरू यह खरीद करने आरंभ करिसंती। निकटरे फिलिपाइन्स मध्य भारतरू ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र किणिबाकू 374.9 न्यूट डॉलर मूल्यर एक प्रस्ताव को अनुमोदन करिछि। ए संपर्कित एक क्रय चुक्ति फिलिपाइन्स जातीय प्रतिरक्षा विभाग पक्षरु ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र प्रकल्प दायित्व थिबा अधिकारी को जणाई दिया जाइछि। भारत उपकूल भित्तिक जहाज विध्वंसी क्षेपणास्त्र ब्रह्मोस फिलिपाइन्स नौबाहिनी पई जोगई देबो। नंबर 15 राज्य में चिन्हट हेले 10,273 पॉजिटिव, खोर्धारू केवल 3,496। गत 24 घंटे राज्य में 10,273 जन पॉजिटिव चिन्हट होती। खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 3,496 जन, सुंदरगढ़ 1,049, कटकू 844, संबलपुर 529, मयूरभंजु 340, बालेश्वर 457, अनुगुड़ू 85, बरगढ़ 102, भद्रकू 102, बलांगीर 191, बौद्धरू 24, देवगढ़ 23, ढेंकानाल 69, गजपति 126, गंजाम 55, जगतसिंहपुर 132, जाजपुर 143, झारसुगुड़ू 202, कंधमाल 203, केन्द्रापड़ारू 74, केन्दुझर 114, कोरापुट 186, मालकानगिरी 30, मयूरभंजु 340, नवरंगपुर 125, नयगढ़ 121, नुआपड़ारू 45, पुरी 269, रायगढ़ 183 और सोनपुर 132 जन आक्रांत चिन्हट होती। नंबर 16 एनडीटीवी वरिष्ठ सांबादिक कमाल खान परलोक। निजर स्वतंत्र रिपोर्टिंग स्टाइल द्वारा समस्त को प्रभावित कर वरिष्ठ सांबादिक कमाल खान आउ नहांती। काली सकाळे हृदघात जोगु तांकर मृत्यु घटिछि। गुरुवार राति जाए से रिपोर्टिंग करने सह सांगमानक सह खटी करथिले, हेले सकाळु सकाळु से समस्त को छाड़ी चली जाइछंती। सांबादिक कमाल खान जातीय गणमाध्यम एनडीटीवी पई दीर्घ 22 वर्षरू अधिक समय हेला कार्य करुथिले। सेहिपरि से 3 दशंधिरू अधिक दिन हेलाणी सांबादिकता जगत सह जड़ित होई रहिथिले। उत्तर प्रदेश राजनीति उपरे तांकर स्वतंत्र दखल थिला। रिपोर्टिंग व्यतीत से फोटोग्राफ रे मध्य बेस रुचि रखुथिले। निजर बेधड़क रिपोर्टिंग पई से अनेक पुरस्कार जीतिथिले। काली रातिरे से संपूर्ण सुस्थ थिले, हेले काली सकाळु हठात तांको स्वास्थ्यावस्था बिगड़ी जाइथिला। परिवार लोके तांको हॉस्पिटल नैथिले, हेले सेठारे डाक्तर तांको मृत घोषणा करिथिले। नंबर 17 17 पर्यंत कटक जिला अदालत और एसडीजीएम कॉम्प्लेक्स शटडाउन। कटक जिला अदालत परिसर में थिबा अन्य समस्त अदालत जनवरी 17 तारिख पर्यंत बंद रहिबो। राज्य में संक्रमण अप्रत्याशित भाव वृद्धि पाइबा सहित अदालतर बहु कर्मचारी कोविड आक्रांत होगा घटना को विचार को निया जाई जिला अदालत पक्षरु एपरी विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। जनवरी 14 रु 17 तारिख पर्यंत जिला अदालत कॉम्प्लेक्स और एसडीजीएम अदालत कॉम्प्लेक्स को संपूर्ण भाव सटडाउन कर जाइछि। कटक मुख्यालय कोर्ट और यार कार्यालय जनवरी 18 रु स्वाभाविक कार्य आरंभ हेबो। कोर्ट कॉम्प्लेक्स को कंटेनमेंट जोन भाव सीएमसी पक्षरु गत 13 तारिख में घोषणा करा जिबा परे जिला अदालत पक्षरु आज यह विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। नंबर 18 राति रे मास्क चेकिंग बेले तातिले लोके, टायर जाड़ी रास्ता अवरोध। भद्रक ग्रामांचल पुलिस काली राति रे मास्क चेकिंग करुथिले। एही जांच बेले पुलिसर मात्राधिक कार्य को नहीं स्थानीय लोक माने अतिष्ठ होई पड़िथिले। मुहरे मास्क नहीं कही जबरदस्त फाइन आदाय करुथबा बेले लोकंको मोटरसाइकेल अटकई देउथिले। पुलिसर एही दमन लीला को सह्य न करी लोके प्रतिवाद करिथिले। लोकंको कहिबा कथा दिन रे सहर सारा सहन मेला, राति रे एभड़ी कड़ाकड़ी जांच काहीकि? या पुलिसर साधारण लोकंको ठारू जबरदस्त चांदा आदाय भड़ी हेउछि बोली लोके अभियोग उठेइथिले। उत्त्यक्त लोक भद्रक ग्रामांचल थाना निकटवर्ती हळदीडीह बाईपास छकर चांदवाली भद्रक मुख्य रास्ता पर टायर जाड़ी प्रतिवाद करने सह रास्ता अवरोध करथिले। नंबर 19 बीजेपी छाड़ीथिबा 2 पूर्वतन मंत्री समेत 7 विधायक समाजवादी पार्टी रे मिसिले। उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल इस्तीफा देइथिबा 3 जन मंत्री मध्यरु काली 2 जन विरोधी समाजवादी पार्टी रे जोग देइछंती। सपारे सामिल होइथिबा 2 मंत्री हेले स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह साहिनी। उभय काली सपा मुख्य अखिलेश यादव उपस्थित रे दल रे मिसिछंती। एमानक व्यतीत बीजेपी छाड़ीथिबा 5 विधायक रोशनलाल वर्मा, ब्रिजेश प्रजापति, मुकेश वर्मा, विनय सख्य, भगवती सागर मध्य समाजवादी पार्टी रे जोग देइछंती। एथिसह बीजेपी सह मेंट करिथिबा अपना दलर चौधरी अमर सिंह काली अखिलेशଙ୍କ साइकेल रे बसिछंती। काली एमानक सह बहु बीजेपी कर्मी और नेता माने मध्य सपारे सामिल होई निर्वाचन पूर्वरु शासक दल विरोध रे गर्जिछंती। नंबर 20
एणिकी शीत दिन भी कारगिल जान्स्कर राजपथ में जापर सेना गाड़ी खूब शीघ्र 230 किलोमीटर लंब कारगिल जान्स्कर राजपथ ऑल वेदर रोड व सबु ऋतु कार्यक्षम हो पारुथिबा रास्ता होनिमंते कार्य आरंभ हो जाइछि। अधिकारी कहिसेंति जे 230 किलोमीटर लंब कारगिल जान्स्कर जातीय राजपथ को सबुदिनिया रास्ता करने जातीय राजपथ एवं भित्तिभूमि विकास निगम लिमिटेड यार नवीकरण एवं प्रशस्तीकरण पर कार्य आरंभ करिछि। लगातार द्वितीय वर्ष पर कारगिल जान्स्कर राजपथ शीत ऋतु कार्यक्षम होइछि। यह संपूर्ण हेले मनाली डार्चा और पादुम अंचल दे कारगिल को सबुठारु कम दूरता हेबो। लद्दाखर सुदूर अंचलर आर्थिक विकास रे यह एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिवो। नंबर 21 टीसीएस इन्फोसिस विप्रो देवे 1 लाख रु अधिक चाकरी। महामारी मध्य निजुक्ति आशायी आशाजनक खबर। चलित आर्थिक वर्ष में देशर प्रमुख आईटी कंपनी टीसीएस इन्फोसिस विप्रो प्राय 1 लाख रु अधिक निजुक्ति देवार संभावना रही। एसबू कंपानी माने 2020 31,000, 2021 प्राय 1,70,000 निजुक्ति देइथिले। गत बुधवार दिन देशर द्वितीय बृहत्तम आईटी कंपनी इन्फोसिस कहिथिला जे 2022 रे प्राय 55,000 फ्रेशर को निजुक्ति दियाजिवो। निजर तृतीय त्रैमासिक आर्थिक फलाफल घोषणा करने अवसर में कंपनी यही घोषणा करिथिला। विप्रो चलित आर्थिक वर्ष अर्थात 2021-22 रे मोट 17,500 निजुक्ति देवाक लक्ष्य रखिथिबा बेले नुआ आर्थिक वर्ष 2022-23 रे 30,000 निजुक्ति देवाक लक्ष्य रखिछि। तेबे केते संख्यक निजुक्ति दियाजिवो से संपर्क में कंपनी कौनसी सूचना देई नाही। नंबर 22 अखिलेश यादव को भेटिले भीम आर्मीर चंद्रशेखर। गठबंधन को नहीं चर्चा। उत्तर प्रदेश निर्वाचन को दृष्टि रखी एबेठारु आरंभ हेलानी राजनीति। उत्तर प्रदेश निर्वाचन में समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी एका संगे आसीपारती। भीम आर्मीर मुखिया चंद्रशेखर आजाद शुक्रवार दिन समाजवादी पार्टी ऑफिस रे पहुंची अखिलेश यादव साक्षात करिसेंति। सूत्ररू मिलिथिबा सूचना अनुसार भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी रे गठबंधन और सीट बंटन को नहीं गत किछि दिन हेबा आलोचना चली। चंद्रशेखर गुरुवार दिन भी सपा ऑफिस को जाइथिले। पार्टी गठबंधन सहित 2022 निर्वाचन में जीवा उचित बोली पूर्वरु चंद्रशेखर कहिथिले। अन्यपटे अखिलेश यादव पूर्वरु कहि सारिछंती कि से छोट दलगुड़ी को मिसई यूपी रे बीजेपी को चैलेंज करिवे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जनवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, कमेरावादी, प्रगतिशील समाज पार्टी, महान दल टीएमसी सहित भी समाजवादी पार्टीर गठबंधन रही। नंबर 23 महाशून्य रे चलिबे रूसर 2 महाकाशचारी। 2022 प्रथम महाशून्य विचरणकारी हेबा निमंते जनवरी 19 तारिख दिन अंतर्जातिक महाकाश केन्द्ररू 2 जण रूसीय महाकाशचारी बाहर को आसिबे। ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम हिसाब रे आगामी बुधवार सकाळ 7टा बेले सेमानक पई महाकाश विचरण कार्य निर्घंट धार्य करा जायछि। महाकाश विचरण समय सेमाने भविष्यत रे आसिबाको थिबा रूसीय महाकाशयान निमंते नुआ प्राइजल मॉड्यूल प्रस्तुत करिवे। नंबर 24 अमेरिका दूतावास थिबा बागदादर ग्रीन जोन रे रॉकेट आक्रमण। गुरुवार दिन जुक्तराष्ट्र अमेरिकार दूतावास थिबा बागदादर ग्रीन जोन रे रॉकेट आक्रमण हेबारु 2 जण पिला जणे महिला समेत 3 जण आहत होइतिबा कथा विवृत्ति देई दूतावास एवं इराकीय सेना कहिछि। संपृक्त अंचल रे थिबा जुक्तराष्ट्र अमेरिकार कर्मचारी माने निरापद थिबा कथा जणे वैदेशिक विभाग अधिकारी कहिसंती। प्राप्त सूचना अनुसार निक्षेप करा जाइतिबा रॉकेट गुड़िक मध्यरु गोटी एक स्कूल रे पड़िथिया बेले आउ 2टी जुक्तराष्ट्र अमेरिका दूतावास प्रांगण रे पड़िथिला। जणे शीर्ष स्तरीय इराकीय सरकारी अधिकारी कहिसंती ग्रीन जोन आड़को 3टी रॉकेट निक्षेप करा जाइथिला। सेथिरु 2टी अमेरिका दूतावास प्रांगण रे पड़िथिला ओ अन्यटी गोटी स्कूल पाखरे पड़िबारु जणे महिला गोटी बालिका एवं गोटी बालक आहत होइछंती। नंबर 25 9 रे पहुंचिला बीकानेर एक्सप्रेस दुर्घटना जनित मृत्यु संख्या। पश्चिमबंगर दोमोहाणी ठारे घटिथिबा बीकानेर एक्सप्रेस दुर्घटना रे मृतकों संख्या 9 रे पहुंची। एही दुर्घटना रे 50 रु अधिक यात्री आहत होइथिबा बेले 36 जन को विभिन्न हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि। सेमानक मध्यरु 10 जनक अवस्था संकटापन्न रहिछि। 14 तारिख संध्यारे घटिथिबा दुर्घटनार उच्चस्तरीय तदंत निर्देश दिया जायछि। सेपटे ट्रेन रे थिबा अन्य यात्री को आउ एक ट्रेन रे पठेई दिया जायथिबा केंद्र मंत्री जॉन बार्ला कहिसंती। नंबर 26 नियुक्ति क्षेत्र रे रेकर्ड सृष्टि कला किट विश्वविद्यालय। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी अर्थात किट भुवनेश्वर कैंपस नियुक्ति क्षेत्र में रेकर्ड हासिल करिछि। किट शिक्षानुष्ठान 270 रु अधिक कंपनी रे 4200 जन छात्र छात्री को चाकरी प्रदान करिछि। एही शिक्षानुष्ठान 5 जन छात्र छात्री वार्षिक 52 लाख पैकेज रे विभिन्न संस्था रे प्लेसमेंट पाइछंती। एने डीम्ड यूनिवर्सिटी रो वाइस चांसलर सस्मिता सामंत सूचना दैछंती। जणा पड़िछि जे किट रो 3000 रु अधिक छात्र छात्री सिंगल प्लेसमेंट ऑफर पाइथिया बेले 1500 रु अधिक छात्र छात्री सेमानकर ड्रीम कंपनी रे जॉब पाइछंती। एही छात्र छात्री मानकर वार्षिक पैकेज 8.1 लाख रहिछि। 35 टी कंपनी रे वार्षिक 10 लाख पैकेज और 130 टी कंपनी रे 5 लाख पैकेज रे छात्र छात्री माने ऑफर पाइछंती। नंबर 27 मारिबनी शत्रुपक्ष सैनिकों मस्तिष्क अकामी करिवो।
जैविक अस्त्र निर्माण में सफल होगा पर चीन एवं शत्रु पक्षर सैनिकों मस्तिष्क नियंत्रण अथवा अकामी करने भली अस्त्र प्रस्तुति में सफल होगा जाऊँगी। यह अस्त्र प्रयोग द्वारा शत्रु पक्षर सैनिकों मस्तिष्क पक्षाघात व्याधि भली अकामी हो जीवन रू मारिबा अपेक्षा चड़त शक्ति रहित करी मजा उठेबा चीन उद्देश्य बोली सूचना मिली। यहाको परपोर्टेड ब्रेन कंट्रोल वेपन बोली कहुछि। वैश्विक ज्ञानकौशल माध्यम मस्तिष्कर क्षमता को संकोचन बा प्रसारण करने पई जीनगत परिवर्तन करने चीन सामाजिक विशेषज्ञ माने लागी पड़िछंती। यह अस्त्र प्राथमिक भाव उइगर मुसलमान संप्रदायर लोक और देश में बंदी थिबा शत्रु पक्षर सैनिकों क्षेत्र में परीक्षा करा जाउछि। यह चमकप्रद तथा भयानक सूचना देइछि अमेरिका। नंबर 28 टीम इंडिया पुणी निराश, एथर भी हारिला सीरीज। दक्षिण आफ्रिका को ता निज माटी रे हरइबार टीम इंडिया स्वप्न पुणी थे धूलिसात हो जाइछि। 2018 बड़ी पुणी थे टीम इंडिया खराब बैटिंग इतिहास रचिबार सुजोग छड़े नहीं। केपटाउन रे खेला जाइतिबा टेस्ट सीरीज तृतीय मैच रे दक्षिण आफ्रिका 7 विकेट रे भारत को हरई सीरीज को 2-1 रे जीति नहीं। मैच रे तृतीय दिवस रे दक्षिण आफ्रिका को विजय पाई 111 रन दरकार थिला बेले भारत को 8 विकेट आवश्यक हेउथिला। तृतीय दिवसर शेष बॉल रे कैप्टेन डीन एल्गार 30 को आउट करी जसप्रीत बुमरा भारत पई आशा संचार करथिले। किंतु चतुर्थ दिवस रे दक्षिण आफ्रिकार इनफॉर्म बैट्समैन पीटरसन और डुसेन तृतीय विकेट पई 54 रन महत्वपूर्ण भागीदारी थिले। यहा परे डुसेनक सह मिसी बाभुमा चतुर्थ विकेट पई अपराजित 57 रन जोड़ी दल को जितेइथिले। नंबर 29 जातीय स्तर में सुंदर स्वास्थ्य प्रतियोगिता रे चमकिले बालेश्वर कृष्णा। भारत सरकार क्रीड़ा युव व्यापार मंत्रालय आनुकूल्य एवं मुंबई बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन सहयोग में आंध्र प्रदेश तेलंगाना ठारे जातीय स्तरीय सुंदर स्वास्थ्य प्रतियोगिता अनुष्ठित हो जाइछि। एथिरे देशर विभिन्न राज्यरू 600 प्रतियोगी भाग नहीं। ओडिशारू बालेश्वर एस कृष्णा राव भाग नहीं बेस्ट पोज प्रदर्शन में प्रथम होई विजय मुकुट हासिल करिसंती। 13तम मिस्टर इंडिया सीनियर विभाग जातीय बॉडी बिल्डिंग एवं फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021 प्रतियोगिता रे कृष्णा बेस्ट पोज वर्ग में प्रथम स्थान में रही। बालेश्वर सहरर सोलपुर अंचल स्वर्गत उपेन राव और लतांक बड़ पुओ कृष्णा डाक विभाग कटक रे कार्यरत अछंती। पोस्टल विभाग सहयोग से ही प्रतियोगिता अंशग्रहण करथिले। नंबर 30 भुवनेश्वर रे राज्यगोष्ठी क्रीडार क्वींस बैटेन। आगामी 2022 बर्मिंघम राज्यगोष्ठी क्रीड़ा पई राणी द्वारा प्रदत्त क्वींस बैटेन काली मंदिर माड़िनी सहर में पहुंची। यह क्वींस बैटेन भुवनेश्वर में पहुंचा पर हॉकी ओडिशा प्रमोशन काउंसिल अध्यक्ष दिलीप तिर्की, ओडिशा सरकार क्रीड़ा और युवा सेवा विभाग अधिकारी और ओडिशा ओलंपिक्स एसोसिएशन कर्मचारी माने स्थानीय बिजू पट्टनायक विमान बंदर में स्वागत करिसंती। जनवरी 15 तारिख में यह मसाल पुरी और कोणार्क जीव। भुवनेश्वर फेरिबा पूर्व यह मसाल को पुरी रे जिला प्रशासन पक्षर स्वागत कर राज्य सरकार क्रीड़ा युवा सेवा विभाग समस्त व्यवस्था करिबो बोली दिलीप तिर्की कहिसंती। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।